So, good morning, all of you. So, today we are going to discuss hydrolysis of salts, right? So, we have to discuss hydrolysis of salt. In that, the first thing we have to discuss that is cationic hydrolysis. So, in that, the first one we discuss that is cationic hydrolysis. So the first one is complete hydrolysis. Complete hydrolysis. So in that we saw the example pH 4 plus. When they react with H2O, it gives you what? pH 3 plus OH minus. Now in this case, this is your acid. I'm sorry, and this is the base. So you do not have OH minus actually. You will have H3O plus. Okay, so here we have H3O plus. Now, in both the cases, H3O plus is a weaker acid than pH 4 plus, and pH 3 is a weaker base than H2O. So both are, this is a weak base and this becomes weak acid. So both are weak. So when both are weak, there will be complete hydrolysis. That means backward reaction here is not possible. Okay, let us consider partial hydrolysis. Partial hydrolysis. So in a partial hydrolysis, let us consider the example of NH4 plus ammonium ion plus H2O. So that gives you what? NH3 plus H3O plus. Okay, so this is the acid, this is base, सॉरी हाँ अभी सही दिख रहा है ना पेज
अरे यार, अथर्व पाटील ऐड होत नाही प्रॉपरली. Now in this case, NH3 is weak base, but H2O is strong acid, right? So here we have a partial hydrolysis. Because of this, there will be backward reaction. So now NH4 plus over here is a weak acid, and H2O still it is a strong base. Okay. Let us consider the next part, that is no hydrolysis. No hydrolysis. Let us have an example, Na plus H2O. That gives you NaOH plus H plus. Now in both the cases, this is strong base. This is your strong base. This is strong base, and this is strong acid. Okay. And here we have what? Na plus is accepting OH minus. So this is your acid and this is your base. So H2O is a weak base and Na plus is a weak acid. So always remember one thing. Reaction proceeds, acid base in here, the reaction proceeds more forward where the product has a weak acid or weak base. So there is no possibility of forward reaction. Reaction will proceed in a backward direction. That is nothing but what? Neutralization. And hence there is no hydrolysis. No forward reaction means no hydrolysis. Understood? Everybody? Okay. Let us go for the next part. That is nothing but anionic hydrolysis.
anionic hydrolysis. Same way, in anionic hydrolysis, we have three cases. First case is complete hydrolysis. Complete hydrolysis. So in a complete hydrolysis, we have example. So in a complete hydrolysis, both the products are weak acid and weak base. So H minus react with H2O, giving you what? We have H2 plus OH minus. Okay. तो यहाँ पे नहीं ऐड हो रहे यार ये लोग, तो नेटवर्क का इश्यू है and I cannot resolve that. So what I told you, this is nothing but your weak acid. Okay, this is a weak base. Now H minus here, this is a strong base, and this is comparatively strong acid. Now H minus is accepting proton, hence it is a base. So if you see over here on a here reactant side, there are strong, so there is no backward reaction. No backward reaction is possible, and therefore there will be complete hydrolysis. Another example, partial hydrolysis. In case of partial hydrolysis, let us take this example, CH3CO minus plus H2O. That reversibly gives you CH3COOH plus OH minus. Okay.
So here we have now, this is accepting proton, right? So this is strong base. Okay, and H2O is an acid, which is, I'm sorry, this is weak base, and this is here, this is weak acid, and therefore this become your strong base, right? In this case, we have strong acid as well as weak base, right? On a product side as well as on the reactant side, and therefore there will be partial hydrolysis. So here the equilibrium can establish on this side. Next one is what? No hydrolysis. There will be no hydrolysis. So Cl minus plus H2O reversibly gives you what? HCl plus H2O. H2O nahi, OH minus. Okay. Now this is strong acid and this is strong base. So corresponding, this is weak acid and this is weak base. So forward reaction is not possible. Only neutralization is possible, and therefore there will be no hydrolysis. Now we are going to apply this concept. Okay, we are going to apply this concept for various salts. Okay, देखो कैसे. Sorry. So there is a printing mistake. This is a weak base and this will be weak acid. Weak base and weak acid. Correct. Now let us take few example for the salts. I'm taking example NaCl. I'm taking. So NaCl when react with water. So here we are going to discuss now hydrolysis of salts. Okay. So when NaCl react with water, that gives you what?
NaOH and HCl. Now just look at here. This is a strong base and this is what? Strong acid. So when both are strong, what we say? There is no hydrolysis. Na? This we can prove like this way also. See, in this process, इसमें कौन से इसका डिसोसिएशन होगा वो हम लोग देखते हैं. जो स्ट्रॉन्ग है उसका डिसोसिएशन होगा, वीक का भी डिसोसिएशन होता है, बट वो डिसोसिएशन एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है. तो यहाँ पे ना एक नोट लिखता हूं, नोट, आई एम राइटिंग वन नोट ओवर हियर. व्हाट आई एम राइटिंग? in a hydrolysis of salt, consider dissociation, of strong electrolytes, consider dissociation of strong electrolytes. Okay, dissociation of weak electrolytes is negligible as compared to strong electrolyte. तो उससे क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, NaCl को मैं NaCl सॉल्ट है ना, तो NaCl आई कैन डिसोसिएट, राइट? तो कैसे होगा डिसोसिएशन? देखो Na प्लस Cl माइनस प्लस H2O, दैट गिव्स यू, अभी H2O वीक है ना, तो उसका डिसोसिएशन मैंने नहीं किया. NaCl सॉल्ट, यू नो दैट सॉल्ट का डिसोसिएशन, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो सॉल्ट का डिसोसिएशन हो जाता है. सो ये हो जाएगा Na प्लस OH माइनस, आगे H प्लस Cl माइनस. तो इसका मतलब देखो Na प्लस और Na प्लस चला जाएगा, Cl माइनस और Cl माइनस चला जाएगा, तो बचा क्या? देखो जरा, व्हाट इज रिमेनिंग? चला जाएगा मतलब कैंसल होगा ना सर, ये मैथमेटिक्स है ना. तो मैथमेटिकली ये और ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये और ये मैंने कैंसिल कर दिया, चला जाएगा मतलब डिसअपियर नहीं होगा, वो सोल्यूशन में ही रहेगा, बट मैथमेटिकली इस इक्वेशन में मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, राइट? तो इसका मतलब व्हाट इज एक्चुअल केस में, व्हाट इज रिमेनिंग, द रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट? H2O gives you what? H plus OH minus. सो अपने टेक्स्ट बुक में ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, समझ में आ रहा है? और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये रिएक्शन होता है ना वहां पे, देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस. देखो ना क्या होगा, Na प्लस वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा? NaOH प्लस H प्लस. Cl माइनस वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या? तो ये हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन किया है, समझ रहे हो? देखो ना Na प्लस
वाटर के साथ रिएक्ट होगा, क्या मिला, NaOH प्लस H प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद Cl माइनस वाटर के साथ रिएक्ट होगा, HCl और OH माइनस मिलेगा, दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में मुझे स्ट्रॉन्ग ही इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है ना, इसलिए मैंने उसको क्या किया, देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। अपने टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने इसको डिसोसिएट किया और ये बताया H2O, बाद में इसको डिसोसिएट किया, इसको डिसोसिएट, जो स्ट्रॉन्ग है उनको डिसोसिएट करके बताया, और बाद में मैथमेटिक्स में जैसे दोनों पार्ट इक्वल है तो दोनों साइड के हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो वो कैंसिल कर रहे, तो अल्टीमेटली एट द एंड रिएक्शन में बच क्या रहे, H प्लस और OH माइनस, इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ OH माइनस। क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस है, ये सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। therefore I'm writing here solution। तो जितने भी सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, सोल्यूशन ऑफ salt of strong acid and strong base is neutral। अभी जब ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब pH क्या रहेगा इसका, 7। और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, देयर इज नो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे, समझे? ओके, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये पहला था हम लोगों का, क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेट अस गो फॉर द सेकंड पार्ट, salt of strong acid and weak base। अभी इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, NH4Cl। क्या ले रहा हूं मैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। When it react with water, HOH, तो इसमें जो कटायनिक पार्ट है, वो कटायनिक पार्ट की तरफ क्या जाएगा, OH माइनस। सो बनेगा क्या, NH4OH, और दूसरा क्या बनेगा, HCl। है ना। अभी ये NH4Cl, ये देखो ये क्या है, वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में अगर एक वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। तो जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो ये हम लोग एरो ऐसे दिखाएंगे बैकवर्ड में। हाँ, ऊपर वाले में देखो नो हाइड्रोलिसिस है, तो इसलिए एंड में मुझे क्या मिला, H प्लस और OH माइनस मिला। अभी इधर देखते हैं अपने टेक्स्ट बुक में कैसे एक्सप्लेन किया है, देखो NH4Cl ये सॉल्ट है ना, तो जो सॉल्ट होता है उसका हम लोग क्या करेंगे, डिसोसिएशन कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस व्हेन इट रिएक्ट विद H2O। अभी देखो NH4OH वीक है ना, तो इसलिए उसका हम लोग डिसोसिएशन कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा NH4OH एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, है ना। अभी देखो ये Cl माइनस और ये Cl माइनस मैथमेटिकली कैंसिल कर दूंगा मैं, बाकी कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहे ना यहाँ पे। सो व्हाट आई हैव नाउ, NH4 प्लस प्लस H2O रिवर्सिबली गिव्स यू, क्या मिलेगा, NH4OH प्लस व्हाट, H प्लस, राइट। तो ये हो गया अपना कटायनिक हाइड्रोलिसिस, है ना। ये देखो ऊपर हम लोगों ने किया था
cationic hydrolysis, है ना? Now since it is a cationic hydrolysis, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, here कौन सा हाइड्रोलिसिस है? Here there is cationic hydrolysis. ठीक है? नाउ क्योंकि ये cationic हाइड्रोलिसिस है और अभी प्रोडक्ट में देखो क्या मिल रहा है, व्हाट इज रिमेनिंग? H प्लस आयंस ना, क्योंकि H प्लस आयंस है इसलिए ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा? एसिडिक। देयरफॉर मैं लिखूंगा क्या? सोल्यूशन ऑफ salt of strong acid and weak base is what? Acidic. और अगर ये एसिडिक है तो इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7. अंडरस्टूड? चलो भी तीसरा पार्ट देखते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना ये? अभी देखो, salt of hydrolysis of salt of weak acid and strong base. इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3COONA सॉल्ट हो गया, that is reacting with H2O reversibly gives you what? Cationic part कौन है? Na और anionic part कौन है? CH3CO minus. तो मैं क्या लिखूंगा? CH3COOH plus what? NaOH. राइट? अभी इसमें ये सॉल्ट है, ये क्या है? वीक एसिड है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। अभी आगे देखो, इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा? मतलब डिसोसिएट कर सकते हैं सॉल्ट को, तो मैं लिखूंगा क्या? CH3CO माइनस प्लस Na प्लस प्लस H2O रिवर्सिबली गिव्स यू, ये जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, CH3COH प्लस ये क्या देगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। अभी ये देखो, ये Na प्लस और ये Na प्लस कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी हैव? CH3CO minus plus H2O reversibly gives you क्या मिलेगा? CH3COOH plus what? OH minus. अभी ये क्या हो गया? Anionic hydrolysis, बराबर ना? There is what? Anionic hydrolysis because anion is reacting with water. सोल्यूशन में क्या एंड में बच रहा है? OH माइनस। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? सोल्यूशन ऑफ salt of weak acid and strong base is what? बोलो, बेसिक। बेसिक रहेगा ना? इसका मतलब पीएच क्या रहेगा? पीएच रहेगा ग्रेटर देन 7। समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो भी आगे देखो। हाँ, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? अभी लास्ट सॉल्ट देखते हैं। हाँ, लास्ट सॉल्ट क्या है? देखो, डी। देखो अभी डी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें एग्जांपल देखो, CH3COONH4
plus H2O reversibly gives you what? CH3 COOH plus what? NH4OH, है ना? अभी ये दोनों देखो, ये वीक एसिड है और ये क्या है? वीक बेस है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, है ना? प्रोडक्ट में अगर दोनों भी वीक एसिड और वीक बेस है तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? कंप्लीट होगा। अभी देखो इसका मैं अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं, मतलब अगर मैं आयोनाइज्ड फॉर्म लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं? आई राइट हियर CH3 COO minus plus what? NH4 plus H2O, that reversibly gives you, ये वीक है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये क्या है? NH4OH का NH4OH ही रहेगा. So both the ions, cation as well as anion, are reacting together. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं both ions hydrolysis, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी क्या मिल रहा है हम लोग को? वीक एसिड और वीक बेस, इसलिए मैं इसको लिखता हूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. क्या लिखूंगा मैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. अंडरस्टूड? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया ये. अभी इसका नेचर क्या रहेगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन dissociation constant. Dissociation constants of weak acid and weak base. मतलब क्या? अगर मैं बोलूं Ka is equal to Kb, तो इसका मतलब दोनों का डिसोसिएशन इक्वल है ना. So there is a equal number of H plus and equal number of OH minus ions. Hence pH of solution क्या होगा? 7. अगर मैं बोलूं Ka is greater than Kb, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि there is a more dissociation of acid, इसलिए pH must be less than 7. Acidic हो जाएगा ना solution. And if I say Ka is less than Kb, pH क्या होगा? Greater than 7. तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, तुम लोग को उसका हाइड्रोलिसिस करके बताना है और तुम लोग को बताना है कि उसका नेचर क्या है. तो यहाँ पे मैं दिख रहा हूं क्वेश्चन होमवर्क के लिए. ये सबको करना है होमवर्क और ग्रुप पे सेंड करना है. आज रात तक सेंड करना है, हाँ 8 बजे तक. होमवर्क ये है, शो द हाइड्रोलिसिस of following salts. Following salts. Also identify the nature and pH of solution. ठीक है? हाँ मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे. फिर कल मैं तुम लोग को शॉर्टकट भी बता दूंगा.
शॉर्टकट सिर्फ एंट्रेंस के लिए काम आएंगे। मैंने तुम लोगों को लिस्ट दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, ये मैंने बताया तुम लोग को पहले ही। And the last one. So ये ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट तुम लोग जब तक होमवर्क नहीं करेगा, हाँ तो 8 PM से पहले बोला ना मैंने, 8 PM से पहले तो टेस्ट तो रहेगा ना, टेस्ट दे दो, ठीक है? समझ में आया? तो ये मैं ये सेंड करता हूँ ग्रुप पे, ये PDF। ओके, तो ये होमवर्क है तुम लोग का। यहाँ पे हम लोग आज रुकते हैं, थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करो यार। अपने को ना, मतलब बाकी सब जगह पे लेक्चर का टाइमिंग वाला 1.5 घंटे से कम नहीं होता, यहाँ पे 1 घंटा भी नहीं मिलता अपने को, 1 आवर भी नहीं मिलता। और कुछ लोग तो आराम से 10 बजे वगैरह ज्वाइन हो जाते। मीनिंग नहीं है ऐसे लेक्चर को बैठने में और ऐसे लेक्चर में भी, समझे ना? तो टाइम पे ज्वाइन करो जरा। आई डोंट थिंक सो नेटवर्क इश्यूज होते हैं, मैं नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, बट नेटवर्क देखो ना, अपना अपना नेटवर्क स्लो है तो इसका मतलब अपने को पहले से ज्वाइन होना है। हाँ, तो ये ट्राई करो, लेट अस सी। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।